رومان خانزادہ گہری نیند کے آغوش میں تھا جب اسے اپنے وجود پر ایک حادثہ وزن محسوس ہوا۔ نیند کے خمار میں اس نے کروٹ لینی چاہی مگر وہ وزن ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک اسے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوئے جس نے اس کے اعصاب میں ایک جھلجھلی دوڑائی۔ سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا جیسے رات کی تھکن ابھی اتری نہ ہو۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رہی سہی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ سامنے ایشل اس کے پیٹ پر بڑا جمان تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پانی کے گلاس پر جمے ہوئے تھے اور وہ بڑی معصومیت سے انگلیاں بھگو کر پانی کے قطرے رومان کے منہ پر چھڑک رہی تھی۔ رومان نے جھنجھلا کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کیا اور بڑی آواز میں بولا، ایشل، یہ کیا بدتمیزی ہے، نیچے اترو میرے اوپر سے۔ ایشل نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس سائڈ پر رکھا، اس کے سینے پر جھک گئی۔ آپ اتنی دیر تک کیوں سوتے ہیں رومان لالا؟ آپ کو پتا ہے نا مجھے بھوک لگی ہے۔ رومان نے غصے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر اپنے برابر گرایا۔ بھوک لگی ہے تو ملازموں سے کہو، میرا سر کیوں کھا رہی ہو؟ ایشل نے تڑپ کر دوبارہ اس کا بازو جھڑک لیا۔ ملازم تھوڑی مجھے پیزا کھلائیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا آج آپ مجھے باہر لے کے جائیں گے۔ رومان نے تکیہ اپنے منہ پر رکھا، وعدہ رات کے لیے تھا۔ ایشل، ابھی صبح کے 7 بج رہے ہیں، جاؤ یہاں سے ورنہ میں نے ڈانٹ دینا ہے تمہیں۔ ایشل نے تکیہ چھین کر دور پھینکا، اس کے کان کے پاس چلائی، میں نہیں جاؤں گی، آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، نمبر 1 کے سست انسان ہیں۔ رومان نے ایک دم اٹھ کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کا چہرہ قریب جھکا، کیا کہا؟ دوبارہ بولو ذرا۔ ایشل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان لیا۔ کہا کہ آپ سست ہیں، اب اٹھیں اور مجھے ناشتہ کروائیں ورنہ میں نے آپ کے سارے لیپ ٹاپ شاور کے نیچے رکھ دینے ہیں۔ رومان نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی ناک مروڑی، تمہاری زبان بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، کسی دن میں نے اسے کاٹ دینا ہے۔ ایشل نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی، آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ کو پتا ہے نا میں آپ کی فیورٹ ہوں۔ رومان نے اسے خود سے دور کیا اور بیڈ سے اترتے ہوئے بڑبڑایا، فیورٹ نہیں، تم تو میری زندگی کی سب سے بڑی آفت ہو، جاؤ تیار ہو کر آؤ، 5 منٹ نیچے ورنہ میں اکیلے چلا جاؤں گا۔ ایشل نے بیڈ پر اچھلتے ہوئے تالی بجائی، یو آر دا بیسٹ لالا، اور وہ تتلی کی طرح اڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ رومان مسکراتے ہوئے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ ایشل کے سامنے اس کی کوئی دوست نہیں چلتی۔ رومان نے گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے روکی ہی تھی کہ ایشل ایک دم چہکتے ہوئے باہر نکلی۔ رومان ابھی گاڑی لاک کر کے مڑا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ایشل سامنے ٹیبل پر بیٹھے اپنے کالج فرینڈز کے گروپ کی طرف بھاگی تھی۔ رومان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے جب اس نے دیکھا کہ وہاں صرف لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے بھی موجود تھے۔ ایشل نے وہاں پہنچ کر کسی احتیاط کے بغیر اپنے دوستوں کو گلے لگایا، پھر ایک لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کے بھی گلے لگ گئی۔ رومان کا خون ایک دم کھولنے لگا اور انگلیاں مٹھیوں میں بینچ گئی۔ اس نے باری قدموں کے ساتھ ان کی طرف قدم بڑھائے۔ ایشل ہنستے ہوئے کسی لطیفے پر اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھول رہی تھی جب رومان کے سائے نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایشل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رومان کی آواز کی گونج اتنی باری تھی کہ ایشل کے دوستوں کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ایشل نے پلٹ کر دیکھا اور بے ساختہ بول پڑی، او لالا، یہ دیکھیں میرے فرینڈز، یہ زوہان ہے میرا بیسٹ فرینڈ۔ اس نے اسی لڑکے کے بازو پر ہاتھ رکھا جس نے ابھی اسے گلے لگایا تھا۔ رومان نے زوہان کے ہاتھ کو دیکھا، پھر ایشل کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں وحشت رقص کرنے لگی۔ گھر چلو ابھی، رومان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایشل نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر لالا، ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی تو آرڈر بھی نہیں دیا۔ رومان نے ایک جھٹکے سے ایشل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا گھر چلو، اپنی حدیں تم بھول رہی ہو، یا میں یاد دلاؤں؟ زوہان نے بیچ میں بولنا چاہا۔ سر، ہم تو بس۔ رومان نے اسے ایسی ہونہار نظروں سے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ تم سے میں بعد میں نپٹوں گا۔ رومان نے ایشل کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لانا شروع کر دیا۔ ایشل نے مزاحمت کرنی چاہیے، چھوڑیں میرا ہاتھ لالا، درد ہو رہا ہے، آپ سب کے سامنے تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ رومان نے اسے گاڑی کے دروازے سے لگایا اور چہرے پر جھک کر دھارا، تماشا تم نے بنایا ہے ایشل، غیر مردوں کے گلے لگ کر میری غیرت کو چیلنج کیا ہے تم نے، اب گھر چل کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان لاڈ پیار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے گاڑی میں پٹھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ ایشل کا دل حلق میں آ گیا۔ رومان نے گاڑی کا دروازہ اتنی سختی سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے پارکنگ ایریا میں سنائی دی۔ اس نے ایشل کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے فلیٹ کے اندر لے گیا۔ ایشل کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کے غصے کا سامنا کرے، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر رومان کی گرفت کسی زنجیر کی طرح اس کے بازو کے گرد کسی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوئے، رومان نے اسے جھٹکے سے ہال کے بیچوں بیچ کھڑا کیا۔ ایشل کے گالوں پر آنسوؤں کی قطاریں بہنے لگی، وہ سسکتے ہوئے اپنے بازو کو سہلانے لگی جہاں رومان کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر رہے تھے۔ لالا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟
इसने कांपते हुए सर उठाया। वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं लाला, हम हमेशा से ऐसे ही। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, रुमान ने दीवार पर इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि इशल की चीख निकल गई। आज के बाद तुम्हारा कोई दोस्त नहीं इशल, तुम्हारी दुनिया इस फ्लैट से शुरू होगी और मुझ पर ख़त्म होगी। तुमने मेरे लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अब तुम रुमान खानज़ादा का वो रूप देखोगी जिससे तुम अभी तक अनजान थी, जहाँ अब सिर्फ खौफ और बेबसी है। अब रोना बंद करो, इसने इसके चेहरे पर झुककर इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि अभी तो हिसाब किताब शुरू है। रुमान ने इसका दुपट्टा एक तरफ फेंका, इसके मज़ीद करीब हो गया। रुमान की सांसें तेज़ सी और गुस्से की शिद्दत से इसकी आंखें खून आलौद हो रही थी, मगर जैसे ही इसकी नज़र इशल के साकत और खौफजदा चेहरे पर पड़ी, इसके हाथ लड़सने लगे। इशल दीवार के साथ लगी सिसकियाँ बढ़ते हुए हिचकियाँ ले रही थी। इसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था। रुमान को अचानक एहसास हुआ कि जुनून मलकियत में वो क्या करने जा रहा था। इसने अपने हाथ पीछे खींचे और एक गहरा सांस लिया। खुद पर आने वाला गुस्सा अब इशल के गुस्से से कहीं ज़्यादा था। वो कैसे इतना बेकाबू हो सकता था। रुमान ने थोड़ी देर आंखें बंद करके खुद को संभाला, फिर आस्था से नीचे फर्श पर रोते हुए इशल के घुटनों के पास बैठ गया। इशल ने डर कर खुद को घेरा। इसे लगा रुमान अब भी गुस्से में है, मगर रुमान ने बहुत ही नरमी से अपना कांपता हुआ हाथ इसके गाल पर रखा। इशल की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। रुमान ने अपने अंगूठे से इसके गर्म आंसू साफ किए, जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इशल, इसकी आवाज़ अब वो धाड़ा नहीं था, बल्कि इसमें एक अजीब सी शिकस्त और नदामत थी। मेरी तरफ देखो, आई एम सॉरी। इशल ने बमुश्किल अपनी सुर्ख आंखें खोलकर इसे देखा। इसके मासूम चेहरे पर खौफ की लहर अब भी वाज़िया थी। रुमान ने इसका बाजू देखा, जहाँ इसकी अपनी गिरफ्त के निशान सुर्ख होकर उभरे थे। इसने तड़प कर इशल का वो हाथ थाम लिया और इसे अपने लबों से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद पर काबू खो बैठा था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना दुख दूंगा। इसने दोबारा इसके आंसू पहुँचे, इसके माथे पर अपने लब रख दिए। इशल ने इसके कंधे पर सर रख दिया और फट पड़ी। आप बहुत बुरे लाला हैं, आपने मुझे बहुत डराया। रुमान ने इसे अपने हसार में ले लिया, जैसे इसे दुनिया की हर नज़र से छुपा लेना चाहता हो। हाँ, मैं बुरा हूँ, तुम्हारे मामले में बहुत बुरा हूँ इशल। बस तुम्हारा किसी और के करीब होना मुझे मार देता है। रुमान इसे अपने सीने से लगाए वहीं बैठा रहा। इसका गुस्सा अब पछतावे की राख में बदल चुका था। रुमान ने इशल को अपने हसार में बेच रखा था, जैसे इसकी खामोशी माफ़ी से सुकून दे रही हो। इशल ने इसके सीने पर सर टिकाए सिसकते हुए सरगोशी की। वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं लाला, हम बचपन से साथ में पढ़ते हैं और मैंने कभी कुछ गलत नहीं सोचा। रुमान ने गहरा सांस लिया और इसके बालों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर दी। मैं जानता हूँ इशल कि तुम मासूम हो, तुम्हारा दिल साफ है, मगर ये दुनिया ऐसी नहीं है। मैं एक मर्द हूँ और मैं जानता हूँ कि मर्द की नज़र और नीयत कब बदल जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसने इशल का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में बढ़ा और बहुत प्यार से इसकी आंखों में झांका। तुम मेरे लिए बहुत हास हो, इतनी हास कि मैं तुम्हें किसी मैली नज़र का निशाना बनने नहीं दे सकता। इसलिए कह रहा हूँ, इन लड़कों से दूर रहा करो। ये तुम्हारे लाला की गैरत का भी मामला है और मोहब्बत का भी। इशल ने मासूमियत से सर हिलाया तो रुमान ने इसकी नाक प्यार से खींची, मगर अंदर ही अंदर रुमान खुद भी परेशान था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों वो इशल के मामले में इतना जुनूनी हो जाता है, क्यों इसका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो इस मासूम पर हाथ उठाने या इसे तकलीफ देने तक चला जाता है। क्या ये सिर्फ बड़े भाई जैसी फिक्र थी या कोई ऐसा जज्बा था जिसे वो खुद भी कबूल करने से डर रहा था। इसने इशल को दोबारा खुद से गले लगाया। इसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या वो वाकई इशल को सिर्फ एक कज़न या छोटी बहन समझता है, या फिर इसकी मलकियत का एहसास हदें पार कर चुका है। रुमान ने फैसला किया कि वो अब इसे कभी नहीं रुलाएगा, मगर मोहब्बत और जुनून की लकीर बहुत धुंधली होती है। रुमान इस वक्त इसी लकीर पर खड़ा था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना था। रुमान ने इशल के गाल थपथपाए और इसके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए शरारती अंदाज में बोला, अच्छा बाबा छोड़ो ये रोना धोना, मेरी जान का मूड पिज़्ज़ा खाने का था ना, तो आज रुमान खानज़ादा अपने हाथों से अपनी आफत के लिए पिज़्ज़ा बनाएगा। इशल ने हैरत से आंखें फैलाई, आपको पिज़्ज़ा बनाना आता है? रुमान ने सीने ऊपर चढ़ाते हुए इसे किचन की तरफ धकेला। तुम्हारे लाला को सब आता है, बस देखती जाओ। किचन में दाखिल होते ही रुमान ने इशल को शेल्फ पर बिठाया और खुद आटा गूंदने की कोशिश करने लगा। इशल ने इसके संजीदा शक्ल देखकर अपनी हंसी ना रोक सकी। लाला, आप आटा गूंद रहे हैं या इससे कुश्ती लड़ रहे हैं? रुमान ने गुस्से से इसे देखा और आटे वाला हाथ इसकी नाक पर लगा दिया। चुप करके बैठो, वरना ये आटा तुम्हारे बालों में लगा दूंगा। इशल ने फौरन बदला लेने के लिए पास पड़ा खुश्क मैदा मुट्ठी में भरकर रुमान के चेहरे पर फूंक दिया।
पूरा किचन सफ़ेद धूल से भर गया और रोमान का चेहरा किसी भूत जैसा लगने लगा। रोमान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर इशल की तरफ लपका। अब तुम नहीं बचोगी। इशल हंसती हुई किचन में इधर उधर भागने लगी। रोमान ने इसे पकड़ने के चक्कर में खुद फिसलते फिसलते बचा। लाला, आप तो बिल्कुल अनाड़ी लग रहे हैं। इशल की खनखनाती हंसी किचन के दरो दीवार में गूंज रही थी। रोमान ने इसे आखिरकार कोना दबा लिया और इसके दोनों हाथ जकड़ कर इसे अपने करीब किया। इशल का सांस फूल रहा था और इसके चेहरे पर जमी मैदे की सफ़ेदी इसकी मासूमियत को और भी निखार रही थी। रोमान की नज़रें इसके हंसते हुए लबों पर जम गई। वो इसे सजा देने का सोच रहा था, मगर इशल की बेसाख्ता हंसी और इसकी आंखों की चमक ने इसे वही साकत कर दिया। रोमान को महसूस हुआ जैसे इसकी रूह इस हंसी में कहीं कैद हो रही है। वो गुस्सा, वो जुनून, वो दुनिया की फिक्रें, सब कुछ जैसे इस लम्हे में थम गई थी। इशल ने इसे खामोश देखकर शरारत से इसके गले में बाहें डाल दी। क्या हुआ लाला, हार मान ली? रोमान ने मदहोशी के आलम में सर झुकाया, इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। हार तो मैं इसी दिन गया था जब तुमने पहली बार मुझे लाला कहा था। इशल ने शर्माकर नजरें झुका ली और किचन का वो मंजर किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा लगने लगा। जहाँ आटा बिखरा हुआ था, पिज़्ज़ा का कहीं नामो निशान ना था, मगर इन दोनों के दिलों में एक अनोखी मिठास गुड़ रही थी। वक्त पर तो किसी का जोर नहीं, और वक्त के साथ साथ इशल के लाड उठाने वाली वो मासूमियत अब एक खुद एतमाद लड़की की शख्सियत में डलने लगी थी। कॉलेज के वो दिन चले गए थे जब वो रोमान के एक इशारे पर सहम जाती थी और हर छोटी बात के लिए इसके पीछे भागती थी। अब वो यूनिवर्सिटी की तालबा थी, जहाँ नई दुनिया थी, नए लोग थे और अपनी मर्जी से फैसले करने का एक नया एहसास। रोमान के लिए ये तब्दीली किसी अजियत से कम ना थी। वो तो इशल का आदी था, जो इसके बिस्तर पर बैठकर इसे नींद से जगाती थी, मगर अब इशल अपनी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि रोमान के पास बैठने का वक्त भी मुश्किल से मिलता था। एक शाम रोमान हाल में बैठा किसी फाइल का मुतालिया कर रहा था कि इशल तेजी से सीढ़ियों से उतरी। वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। रोमान ने नजरें उठाकर इसे देखा और बेसाख्ता पूछा, कहाँ जा रही हो इशल? इशल ने आईने में अपना अक्स देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया, लाला यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेमिनार है, वहाँ जा रही हूँ। देर हो जाएगी तो मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। ये कहकर वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रोमान का हाथ फाइल पर जम गया। मुझसे पूछा तुमने? अब रोमान खानजादा की इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। इशल ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और मुड़कर एक फीकी सी मुस्कुराहट दी। लाला, अब मैं बची नहीं रही और ये सेमिनार मेरी स्टडीज़ के लिए ज़रूरी है। इसमें पूछने वाली क्या बात थी? रोमान एक झटके से सोफे से उठा। इसका पारा हाई हो रहा था। बात ज़रूरत की नहीं इशल, बात तरीके की है। पहले तुम पानी पीने से भी पहले मेरी शक्ल देखती थी और अब तुमने बताया तक नहीं कि तुम जा रही हो। इशल ने थोड़ा सा झंझलाकर कहा, तब मैं छोटी थी लाला, अब मुझे जिम्मेदारियों का पता है। प्लीज़, मुझे लेट हो रहा है। वो बगैर रुके बाहर निकल गई और रोमान वहीं खड़ा इसे जाते देखता रहा। इसे वो खुद मुख्तारी जहर लग रही थी जो इशल को इससे दूर कर रही थी। इसे इशल का वो बदला हुआ लहजा हजम नहीं हो रहा था। जहाँ अब लाला का लफ्ज़ में वो पहले वाली अपनायत और ताबेदारी नहीं थी, बल्कि एक रस्मी पुकार थी। रोमान ने मुट्ठी बेंच कर दीवार पर मारी। इसे लग रहा था जैसे इसकी मलकियत इसके हाथों से रेत की तरह फिसल रही हो, और यही वो आगाज़ था इस जुनून का जिसने आगे चलकर सब कुछ राख कर देना था। इशल के जाने के बाद रोमान काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। इसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसकी लाडली अब इसकी दस्तरस से बाहर हो रही थी। दूसरी तरफ इशल जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो इसका मूड काफ़ी ऑफ था। वो एक बेंच पर बैठकर बार बार अपना मोबाइल देख रही थी, जैसे इसे अपनी बदतमीजी का एहसास हो रहा हो। तभी हाजक इसके पास आया। वो इशल का क्लासमेट था और काफ़ी अरसे से इससे दोस्ती गांठने की कोशिश में था। इशल, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाजक ने हमदर्दी जताते हुए पूछा। इशल ने एक ठंडी आह भरी। कुछ नहीं हाजिक, बस घर में लाला से थोड़ी बदतमीजी हो गई थी। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो नाराज़ होंगे। हाजिक के चेहरे पर एक मकाराना मुस्कुराहट आई। इसे यही मौका चाहिए था इशल के कान भरने का। बस इतनी सी बात। इशल, तुम अब बच्ची नहीं हो कि हर बात पर इन लाला से सर्टिफिकेट लेती फिरो। तुम एक खुद मुख्तार लड़की हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है। इशल ने इसे उलझन से देखा। मगर वो बड़े हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। हाजक ने कुर्सी इसके करीब की और नीचे आवाज़ में पट्टियाँ पढ़ाना शुरू की। ख्याल रखना और गुलाम बनाकर रखना दोनों अलग बातें हैं इशल। वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तुम कोई इनकी खरीदी हुई गुलाम हो कि वो जब चाहें तुम्हें डांटे, तुम्हारी मर्जी पूछे। ये तो तुम्हारा हक है कि तुम जहाँ चाहो जाओ, जिससे चाहो मिलो। तुम्हें इनके इस जुनूनी रवैये के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, वरना तुम कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाओगी। इशल खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी। हाजिर के जहरीले जुमले
آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں گر کر رہی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ شاید حاذق ٹھیک کہہ رہا ہے۔ رومان کا پیار اب اسے قید محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان باتوں کا انجام کتنا ہولناک ہونے والا ہے۔ حاذق نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج کرنے کی ٹھانی۔ اشل، اس خوف سے نکلنے کا اب ایک ہی راستہ ہے۔ آج تم گھر جا کر اپنی ماما کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں کل ہی اپنی فیملی کو لے کر تمہارا رشتہ لینے آؤں گا۔ جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تب تم اس قید خانے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ اشل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مگر حاذق، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ لالا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ یہ سب کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ بہت جنونی ہے۔ حاذق نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ محبت؟ اشل، تم اسے محبت کہتی ہو؟ یہ محبت نہیں، ان کی بیمار انا ہے۔ وہ تمہیں کسی ایک انسان نہیں بلکہ ایک جاگیر سمجھتے ہیں۔ کیا محبت کرنے والے اپنے پیار کو ایسے ڈراتے دھمکاتے ہیں؟ کیا محبت میں کسی کا دم گھونٹا جاتا ہے؟ وہ صرف تمہارے معصوم جذبات سے کھیل رہے ہیں تاکہ تم ہمیشہ ان کے قدموں میں پڑی رہو۔ اشل کی آنکھوں میں تذبذب دیکھ کر اس نے مزید زہر گھولا۔ دیکھو اشل، اگر تم آج ہمت نہیں کرو گی تو پوری زندگی ان کے اس لالا والے لبادے میں چھپے جنون کی بھینٹ چڑھ جاؤ گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ ہمیشہ تمہیں بتائیں کہ تمہیں کیا پہننا ہے اور کس سے ملنا ہے؟ اشل کو رومان کا وہ غصہ یاد آیا جو اس نے فلیٹ پر دیکھا تھا۔ اس سے حاذق کی باتیں سچ لگنے لگی۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو حاذق، وہ محبت نہیں، شاید ان کا کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ میں آج ماما سے بات کروں گی۔ حاذق کی آنکھوں میں جیتنے کی چمک آئی۔ بس یہی ہمت چاہیے تھی۔ کل کے بعد تم آزاد ہوگی اور رومان خانزادہ کا تمہاری زندگی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ اشل گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ رومان کے خلاف نہیں بلکہ اس طوفان کے خلاف جا رہی ہے جو اسے اور رومان کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا۔ اشل جب گھر پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھی اپنی ماما کے کمرے میں گئی اور حاذق کے بارے میں سب کچھ اگل دیا۔ ماما، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، کل وہ رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں اب لالا کے ڈر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ ابھی اس کی ماما کچھ جواب دیتی کہ دروازے پر رومان کے بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ وہ کافی دیر سے وہیں کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ رشتہ؟ اس 2 ٹکے کے لڑکے کا رشتہ؟ رومان کی آواز میں وہ گرج تھی کہ اشل کی روح کانپ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اشل، تمہاری اتنی ہمت کہ تم کسی غیر مرد کو اس گھر کی دہلیز تک لانے کا سوچو۔ رومان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ اشل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے اس کے بابا، اشل کے تایا اور اشل کی بیوہ پھپھو جو کہ اشل کی ماں تھی کمرے میں آ گئی۔ بس رومان، بہت ہو گیا تمہارا یہ جنون، رومان کے بابا نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ جوان ہے، اس کی اپنی پسند ہے، تم کیوں ہر بات میں اپنی مرضی تھوپتے ہو؟ اشل کی ماما نے بھی اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے چھپایا اور رومان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہاں رومان، میری بیٹی کوئی قیدی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق رکھتی ہے۔ اگر اسے وہ لڑکا پسند ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم محض اس کے کزن ہو، اس کے مالک نہیں۔ رومان کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے لگا جیسے کسی نے تپتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس نے حیرت اور اذیت سے اشل کو دیکھا جو اپنی ماما کے پیچھے چھپی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی اشل تھی جو کبھی اس کے ایک اشارے پر جان مارنے کو تیار رہتی تھی مگر آج اسے محض ایک کزن اور خوف کی علامت سمجھ رہی تھی۔ رومان کی مٹھیاں جو خوف سے بنچی ہوئی تھی آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شکست خوردہ خاموشی چھائی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ معصوم سی بچی جو محض اس کی تھی، جو اس کے وجود کا حصہ لگتی تھی، اب اس کی نہیں رہی۔ اس نے اسے کھو دیا تھا۔ رومان نے ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے رخ موڑا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی خاموشی اس کی چیخوں سے زیادہ خطرناک تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اشل کو اپنی محبت نہیں دی بلکہ اس نے اپنے جنون سے اتنا ڈرا دیا کہ وہ کسی اور کی پناہ ڈھونڈنے لگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنی اور مہندی کی خوشبو کا پہرا تھا مگر رومان خانزادہ کے لیے یہ گھر کسی قبرستان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی کی چادر اوڑھ کر سب سے الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ نہ کسی سے جھگڑا، نہ کوئی اعتراض، بس ایک ایسی بے حسی جس نے سب کو حیران کر رکھا تھا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں چھپ کر چھت کی منڈیر پر کھڑا اشل کے کمرے کی روشن کھڑکی کو دیکھتا رہتا جہاں اب وہ اپنے مستقبل کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ رومان کے دل میں اٹھنے والی ٹیسیں اس کے وجود کو کرچی کرچی کر رہی تھی۔ اسے یاد آتا تھا کہ کیسے اس نے اشل کی ہر چھوٹی خواہش کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، کیسے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا مگر اس کی محبت جنون اور خوف کے لبادے میں اس قدر لپٹی ہوئی تھی کہ اشل کو اس میں صرف زنجیریں نظر آئی۔ شادی کے کارڈز پر اشل کے نام کے ساتھ جب اس نے حاذق کا نام دیکھا تو رومان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس کے دل نے چیخ چیخ کر کہنا چاہا کہ اشل، تم صرف میری ہو،
मगर इसकी जुबान खामोश रही क्योंकि इसे पहली बार अपनी मोहब्बत की नाकामी का यकीन हो गया था। वो जिस लड़की को अपनी सांसों की माला समझता था अब इसे अपने ही हाथों से रुखसत करने की तैयारियों में शामिल था। इशल कभी कभार इसे घर में देखती तो इसकी नज़रों में मौजूद इस गहरी अजियत को देखकर तड़प उठती थी। रोमान की खामोशी इसके गुस्से से ज़्यादा तकलीफदेह लग रही थी। इसे पहली बार महसूस हुआ था कि रोमान इसे वाकई मोहब्बत करता था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रोमान अब सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह इन रसूमात का हिस्सा बन रहा था। वो खुद इस दर्द का आदी बना रहा था जो इसे ताहयात मिलने वाला था। इसे नहीं पता था कि यह खामोशी किसी बड़े हादसे का पेशेमा है या फिर इसकी अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का नौश्ता दीवार। शादी का घर शोरगुल से गूंज रहा था, मगर इशल के कमरे में एक ऐसी बड़ी खामोशी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। सुरख और उसी लिबास में मलबूस बाड़ी जेवरात तले दबी इशल आईने के सामने बैठी अपनी ही तकदीर को देख रही थी जब दरवाज़ा आस्ता से खुला और रोमान अंदर दाखिल हुआ। रोमान, जिसकी आंखें नींद की कमी और दिल की अजियत से सुर्ख हो रही थी, खामोशी से चलता हुआ इसके करीब आया। इशल ने आईने में इसका अक्स देखा तो इसका सांस रुक गया। रोमान ने लड़से हाथों से इसके सर पर मौजूद दुपट्टे को छुआ, फिर जब्त के तमाम बंधन टूट गए। इसने बगैर कुछ कहे इशल को अपने मजबूत हसार में ले लिया और अपना चेहरा इसके कंधे में छुपा दिया। इशल, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मगर खुदा गवाह है मैंने तुम्हें मांगने के लिए अपना वकार तक दाव पर लगा दिया था। रोमान की आवाज़ सिसकियों में बदल गई थी। वो एक ताकतवर मर्द था, मगर आज अपनी मोहब्बत की रुखसती पर एक बच्चे की तरह टूट कर रो रहा था। इशल का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। रोमान के गर्म आंसू इसके कंधे पर गिरे तो इसे एहसास हुआ कि वो किस अजीम मोहब्बत को छोड़कर जा रही है। बचपन से लेकर आज तक इसकी हर जिद, हर नहरा, हर तकलीफ अगर किसी ने अपनी जान पर सही थी तो वो रोमान था। इशल के अंदर की खुद मुख्तारी की दीवारें रेत की तरह ढेर हो गई। इसे महसूस हुआ कि वो हादसे की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत खो रही है। इसने तड़प कर रोमान को इतनी सख्ती से दबोचा जैसे वो इसे खुद से अलग नहीं होने देना चाहती थी। वो इसके सीने से लगकर ज़ारा खुतार रोने लगी। लाला, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। इसकी सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी। इसे अब रोमान से दूरी मौत जैसी तकलीफ दे रही थी। इसका अपना दिल फटने लगा था। वो रोमान की कमीज़ को मुट्ठियों में बेच कर बस रो जा रही थी। इस वक्त इसे कायनात की हर शय हेच लग रही थी। इसे बस अपना रोमान चाहिए था, अपना वो पागलपन वाला लाला जिसकी कैद अब इसे दुनिया की हर आज़ादी से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। रोमान ने इसका चेहरा हाथों में लिया, इसकी पेशानी चूमकर आखिरी बार सरगोशी की। जाओ इशल, मैंने तुम्हें खुद से आज़ाद किया, मगर याद रखना तुम्हारा लाला अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और वो इसे वहीं रोता छोड़कर बड़े बड़े कदम बढ़ता कमरे से बाहर निकल गया। पीछे अपनी और इशल की रूह के टुकड़े छोड़कर रुखसती का वक्त आया तो इशल की नज़रें दीवानावार रोमान को ढूंढ रही थी, मगर वो पूरे घर में कहीं नज़र नहीं आया। वो खामोशी से अपने दिल के अरमानों का जनाजा उठाए कहीं रोपोश हो चुका था। इशल बोझल दिल और नम आंखों के साथ हाजिर के साथ रुखसत हो गई थी। वो रोमान की कमी को अपनी पोर में महसूस कर रही थी। इसे लग रहा था जैसे इसका वजूद घर में ही कहीं रह गया हो। हाजिर के घर पहुंचते ही जब इसे कमरे में बिठाया गया तो इशल का दिल किसी अनजाने खौफ से डूबने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला। हाजिर अंदर दाखिल हुआ, मगर इसके कदमों में तवाज़ा नहीं था जो एक आम इंसान का होता है। इशल ने घूंघट के पीछे से इसे देखा तो वह लड़खड़ा रहा था। हाजिर ने करीब आकर एक झटके से इसका घूंघट उलट दिया और इसके चेहरे पर एक ऐसी मकरू और फातिहाना हंसी थी जिसने इशल के वजूद को मुंजमद कर दिया। हाजिर नशे की हालत में दूध था, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और वो इशल को देखकर हंसियानी अंदाज में हंसने लगा। तो आखिरकार तुम खानजादा के चुंगल से निकलकर मेरे पास आ ही गई। इसने इशल की थोड़ी पकड़कर इसे अपनी तरफ मतवजा किया। इशल ने नफरत और खौफ से अपना चेहरा पीछे हटाया। हाजिर, ये आपको क्या हुआ है? आपने शराब पी रखी है? हाजिर ने जोरदार कहकर गाया। शराब? इशल प्यारी, ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मैं तो सिर्फ इस मगरूर रोमान की वो चीज़ छीनना चाहता था जिस पर इसे नाज था, और देखो मैंने इसे हरा दिया। अब तुम मेरे पास हो और वो कहीं कोना पकड़े रो रहा होगा। इशल को लगा जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। हाजिर का वो असली और गलीज रूप इसके सामने था जिसका रोमान इसे बार बार इंतबा देता था। आपने मुझसे झूठ बोला, आपने सिर्फ लाला से बदला लेने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इशल ने रोते हुए इसे धक्का देना चाहा, मगर हाजिर ने इसे मजबूती से बालों से जकड़ लिया। लाला लाला करना बंद करो, अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी इस मासूमियत का तमाशा मैं अब रोज़ बनाऊंगा। हाजिर की हंसी कमरे में गूंज रही थी और इशल को पहली बार एहसास हुआ कि वो किस जहन्नम में कदम रख चुकी है जहाँ से वापसी का अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। पहली रात ही इशल पर क़यामत बनकर टूटी थी। हाजिर ने अपनी नफरत और रोमान से बदला लेने की आग में इशल के नाजुक वजूद को बुरी तरह झुलसाया।
वो कोई शौहर नहीं बल्कि एक दरिंदा था जो इससे रोमान की पसंद होने की सजा दे रहा था। पूरी रात इशल की सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर दम तोड़ती रही, मगर हादसे के दिल में रहम का एक खतरा तक न आया। वो इसे अजियत देकर जैसे रोमान की जीत का बदला ले रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो इशल फर्श पर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी थी। इसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जब इसने बमुश्किल उठने की कोशिश की तो इसके वजूद के हर हिस्से से उठने वाली टीसों ने इसे तड़पा कर रख दिया। इसने आईने में अपना अक्स देखा तो लड़स कर रह गई। इसके सफ़ेद शानों, गर्दन और कलाइयों पर हादसे के जुल्म के नीले और सुर्ख निशानात उभरे हुए थे, जो चीख चीख कर इसकी बर्बादी की गवाही दे रहे थे। वो मासूमियत जो कभी रोमान के हिसार में महफूज थी, अब तार तार हो चुकी थी। इशल ने कांपते हाथों से जख्मों को छुपाने की कोशिश की, मगर वो निशान इसकी रूह पर लग चुके थे। इसे रोमान का तपता हुआ लम्स याद आया, जो गुस्से में भी इसके लिए एक ढाल था। और आज हाज़िक की इस दरिंदगी ने इसे बता दिया था कि इसने अपने मुहाफिज को खोकर कितनी बड़ी गलती की है। वो वहीं घुटनों में सर दिए देकर बिलक पड़ी। इसे अपनी ज़िंदगी एक ऐसे बंद रास्ते पर लग रही थी जहां अब सिर्फ अंधेरा और अजियत थी। 1 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर रुमान खानज़ादा के लिए वक्त जैसे इस रात थम गया था जब इसने इशल को सुर्ख जड़ में किसी और के हवाले किया था। वो इसी रात सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुल्क से बाहर चला गया था। इसने अपने पीछे जुड़े हर रिश्ते और हर याद से नाता तोड़ लिया था। इसे मालूम भी ना हुआ कि इसके जाने के कुछ अर्सा बाद इसकी फुफ्फो यानी इशल की माँ अपनी बेटी के दुख और सदमे में हाल के हकीकी से जा मिली। रुमान ने खुद को एक ऐसे हॉल में बंद कर लिया था जहाँ सिर्फ बिजनेस फाइलें और बेरहम फैसले थे। इसकी शख्सियत में मौजूद वो बची खुची नरमी भी अब पत्थर में बदल चुकी थी। 1 साल बाद जब रुमान खानज़ादा वापस लौटा तो वो पहले वाला रुमान नहीं था। अब वो एक बेरहम बिजनेस टाइकून था जिसकी आंखों में जज्बात की जगह सिर्फ सर्द मोहरी थी। वो अपने ऑफिस में लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठा था। इसे कोई सरोकार नहीं था कि इस शहर में इसके अपनों पर क्या गुजरी। वो अपने आलीशान ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी इंटरकॉम पर सेक्रेटरी की आवाज़ गूंजी। सर बाहर एक लड़की आई है, बहुत मजबूर लग रही है, हमला है और इसे डिलीवरी के लिए कुछ पैसों की मदद की ज़रूरत है। क्या इसे अंदर भेज दूं? रुमान ने एक लम्हे के लिए भी नजरें स्क्रीन से नहीं हटाई। इसके माथे पर उकताहट की लकीरें उभरी। हाँ भेज दो, मेरा वक्त ज़ाया ना करे, बस रकम पूछकर इसे फारिग करो। इसने मुसरूफाना अंदाज में जवाब दिया और दोबारा अपने काम में गर्क हो गया। थोड़ी देर बाद ऑफिस का भारी दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और कदमों की चाप सुनाई दी। वो लड़की सामने रखी कुर्सी पर बैठने की बजाय वहीं फासले पर खड़ी रही। इसका सांस फूल रहा था। मोहतरमा, आपको डिलीवरी के लिए कितने पैसे चाहिए? रुमान ने नजरें लैपटॉप पर जमाए बगैर देखे पूछा। इशल ने सिसकते हुए जवाब में एक मामूली सी रकम बताई तो रुमान के लबों पर एक तरह से मुस्कुराहट फैल गई। इसने अब भी सर नहीं उठाया। इतने पैसों में तो आजकल पिज़्ज़ा भी नहीं आता, आप डिलीवरी कैसे करवाएंगी? इसने तमस्सर उड़ाते हुए जैसे ही सर उठाकर सामने देखा तो इसके सीने में जैसे कोई धमाका हुआ। कलम इसकी उंगलियों से छूटकर मेज़ पर जा गिरा। सामने बड़े पेट के साथ एक मैली सी बड़ी सी चादर में खुद को लपेटे इसकी अपनी साबका आफत अब किसी और के जुनून का बोझ उठाए इसके सामने बखारी बनकर खड़ी थी। रुमान की आंखों में वहशत रक्स करने लगी। इसने एक झटके से उठकर सबको बाहर जाने का इशारा किया और तरह से रूम लॉक कर दिया। वो होनहार कदम बढ़ता इसके करीब आया और इशल को कमर से पकड़कर मेज़ के साथ लगा दिया। पैसे छोड़ो, पहले ये बताओ इस छोटे गैंगस्टर का बाप कहाँ है? इसने झुककर इसके वजूद को महसूस किया जहाँ हाज़िर की निशानी पल रही थी। रुमान की आवाज़ में गुस्सा और अजियत की एक ऐसी लहर थी जिसने इशल के अंदर जमी बर्फ़ को पिघला दिया। इसने लड़ती हुई नज़रों से रुमान के इस सख्त और बेरहम चेहरे को देखा। इसे याद आया वो वक्त जब रुमान इसके गिर्द एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा रहता था जिसे कोई भी नहीं छू सकता था। जब तक रुमान इसका मुहाफिज था, इसे कभी किसी नज़र, किसी दुख या किसी हाज़िर का खौफ नहीं था। 1 साल की इस तवील अजियत में जहाँ इसे रोज़ मरना पड़ता था, वो कभी किसी के सामने नहीं रोई थी। इसने अपने आंसू पीते हुए खुद को पत्थर बना लिया था, मगर आज अपने सामने मुहाफिज देखकर इसके सब्र का बंधन रेजा रेजा हो गया था। इशल की सिसकियाँ एकदम चीखों में बदल गई। वो तमाम तर तकल्लुफ़ात और माजी की तलखियों को भूलकर बिल्कुल इसी तरह रुमान के सीने से जा लगी जैसे बचपन में ज़रा सी चोट लगने पर इसके हिसार में पनाह लेती थी। लाला, इसने तड़प कर पुकारा और अपनी मुट्ठियों में रुमान की महंगी शर्ट को ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ सहारे को पकड़ता है। रुमान, जो अभी तक इसे तलह बातें सुना रहा था, इशल के इस अचानक लम्स और हिचकियों से बिल्कुल साकत हो गया। इसका वो गुस्सा जो पहाड़ की तरह खड़ा था, इशल की एक आह से मिट्टी का ढेर बनने लगा। इशल इसके सीने से चिमटी ज़ारो कतार रो रही थी। इसका बड़ा हुआ पेट इन दोनों के दरमियान इस तरह हकीकत की तरह हायल था जिसे रुमान जुटला नहीं सकता था।
मगर इस वक्त इसकी बेबसी ने रोमान के अंदर के तमाम गिले शिकवे मिटा दिए थे। रोमान के हाथ जो पहले इसे खुद से दूर करने के लिए उठे थे, अब खुद बखुद इशल के कमर के गिर्द संभालने के लिए मुड़ गए। इसने महसूस किया कि इशल का वजूद कितना नहीफ हो चुका था। वो इसकी बाहों में कांप रही थी। इशल, रोमान की आवाज़ अब वो सर्द नहीं रही थी, बल्कि इसमें एक ऐसी अज़ियत थी जो सिर्फ अपनों को टूटता देखकर पैदा होती है। इशल ने इसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हाँफते हुए कहा, लाला मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा ले, मैं अकेली हो गई हूँ। मम्मा भी चली गई हैं और मैं। वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। इसकी हिचकियाँ दोबारा बंद हो गई। रोमान ने इसे मज़ीद हुद में बेंच लिया। इसने अपनी आंखों में उतरते आंसुओं पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो इशल की इस हालत पर खामोश भी नहीं रह सकता था। रोमान के सीने से लगी इशल की सिसकियाँ अभी थमी भी नहीं थी कि अचानक इसका वजूद रोमान के हाथों में झूलने लगा। इसकी सांसें उखड़ने लगी और दर्द की एक शदीद लहर ने इसे बेहाल कर दिया। रोमान ने घबराकर इसे संभाला। इसका दिल पाश पाश हो रहा था। जब इसने इशल को तकलीफ से तड़पते देखा, वो पागलों की तरह इसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। रास्ते भर वो इसे हौसला देता रहा, मगर इसके अपने हाथ कांप रहे थे। अस्पताल पहुंचने के बाद फौरन इसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। घंटों की अजियतनाक इंतजार के बाद जब नर्स बाहर आई तो इसके हाथों में एक गुलाबी कपड़े में लिपटी नन्ही सी चांद थी। मुबारक हो, बेटी हुई है, नर्स ने मुस्कुरा कर कहा। रोमान ने कांपते हाथों से इस नन्ही सी परी को थामा। वो बिल्कुल इशल जैसी थी। वही मासूमियत, वही नगोश। रोमान की आंखों से आंसू टूटकर इस बच्ची के गाल पर गिरे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या इस दर्द पर मातम करे जो इशल ने तनहा सहा था। कुछ देर बाद जब इशल को होश आया तो रोमान इसके सरहाने बैठा हुआ था। इसकी जान को गोद में लिए इसे नहा रहा था। इशल ने बोझल पलकें उठाकर इसे देखा तो रोमान की नज़रें इसके मुरझाए हुए चेहरे पर जम गई। इसने बच्चे को साइड पर रखा और इशल का हाथ थामकर बहुत ज़ब्त के साथ पूछा, इशल अब तो बता दो, हाजिक कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? इशल ने दुख से अपनी आंखें बंद कर ली। एक गहरा आंसू इसकी कनपट्टी से होता हुआ तकिए में जज्ब हो गया। इसने मुझे तलाक दे दी है लाला। इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीफ थी कि रोमान को लगा इसके कान बज रहे हैं। इसने कहा, इसका मकसद सिर्फ आपको नीचा दिखाना था और जब वो पूरा हो गया तो इसने मुझे हमला हालत में ही घर से निकाल दिया। इशल ने हिचकियाँ लेते हुए बताया। रोमान का खून एकदम खोलने लगा। इसने मुठियाँ बेच गई और आंखों में वही पुरानी वहशत लौट आई। इसे अपनी इस मोहब्बत पर अफसोस हो रहा था जिसे इसने एक दरिंदे के हवाले कर दिया, मगर अब इसकी नज़रों में एक अज़्म था। वो इशल और इस नन्ही परी को अब खुद से कभी भी दूर नहीं करेगा। बरसों का कर्ब और शिकवा सिमट आया था। इसने तड़प कर रोमान की तरफ देखा और बोली, तुम मुझे इस जालिम दुनिया के रहमो करम पर छोड़ गए थे। तुम्हें एक बार भी एहसास न हुआ कि मैं इसका पता करूं? मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है ये मुझे ही पता है। तुमने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया था और इन लोगों के हवाले कर दिया जिनके दिलों में रत्ती बराबर रहम नहीं था। रोमान खामोशी से इसकी अजियत को देखता रहा। इसकी अपनी आंखें भी नम थी, लेकिन इसने खुद पर जब्त पाया हुआ था। फिर वक्त ने पलटा खाया। पूरा 1 साल रोमान ने साए की तरह इशल के साथ गुजारा। इसने इशल की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ा, इसके हर दुख का मुदावा किया और हर पल इसका ख्याल रखा। इस दौरान रोमान का रूह हाजिक की तरफ भी रहा। हाजिक जिसने इनकी ज़िंदगी में जहर घोला था, इसे रोमान ने बड़ी महारत से इसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। हाजिक की हर चाल उल्टी पड़ गई और आखिरकार वो अपने किए की सज़ा पाकर मुंतके अंजाम को पहुंचा। जब इंतकाम की आग ठंडी हुई और जख्म बढ़ने लगे तो एक खूबसूरत शाम में इशाल और रोमान का निकाह पढ़ा दिया गया। इशाल के हाथ हिना से सजे हुए थे और रोमान के चेहरे पर एक फातिहाना सुकून था। जब काजी ने इनका रिश्ता जोड़ा तो इशाल को एहसास हुआ कि रोमान ने कभी भी इसे तन्हा नहीं किया था, बल्कि वो हमेशा के लिए बनाने की तैयारी कर रहा था। दोनों ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया जहां अब कोई जुदाई और कोई शिकवा बाकी न रहा। आज इशल एक बार फिर से दुल्हन बनी थी, मगर इस बार वो किसी ज़बरदस्ती का शिकार नहीं थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत के नाम होने जा रही थी। सुर्ख बाड़ी अरूसी लिबास में मलबूस इशल आईने के सामने बैठी अपनी ही रंगत को देख रही थी जो रोमान के नाम की खुशी से दहक रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और रोमान खानज़ादा काली शेरवानी में मलबूस अपने पूरे जाहो जलाल के साथ अंदर दाखिल हुआ। रोमान ने आईने में इशल के सरापे को देखा तो इसके कदम में ही रुक गए। वह खामोशी से चलता हुआ इशल के पीछे आ खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर रख दिए। रातें जाकर गुजारी हैं, कितनी बार खुद से लड़ा हूँ। इसकी आवाज़ की थरथराहट में बरसों की तरफ साफ झलक रही थी। इशल ने मुड़कर रोमान की आंखों में देखा, जहाँ अब गुस्सा नहीं बल्कि पिघलता हुआ प्यार था। इसने हिम्मत करके रोमान के हाथ थाम लिए और इन्हें अपने लबों से लगा लिया। रोमान ने एक झटके से इसे कुर्सी से उठाया और अपने फलादी हिसार में बेंच लिया। इशल का चेहरा इसके सीने में दब गया, जहाँ इसे रोमान के दिल की धड़कनें अपने नाम का शोर मचाती हुई महसूस हुई। लाला, इसने मदहोशी में पुकारा तो रोमान ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। अब लाला नहीं इशल, अब मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ, तुम्हारा शोहर हूँ।
اس نے سرگوشی کرتے ہوئے جھک کر اشل کے ماتھے پر ایک طویل اور تپتا ہوا بوسہ ثبت کیا۔ اشل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ رومان نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے کے وسط میں لے آیا جہاں گلابوں کی مہک سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ اس نے اشل کو بستر کے ریشمی غلاف پر بڑی نزاکت سے بٹھایا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اس نے اشل کے پیروں سے جوتے اتارے، اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ میں نے تمہیں بہت رلایا ہے نا اشل، بہت تکلیف دی ہے۔ رومان کی آواز بڑھائی ہوئی تھی۔ اشل نے جھک کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ ان دکھوں کے بعد ہی تو یہ سکھ ملا ہے۔ میں آپ کی ہوں رومان، ہمیشہ سے صرف آپ کی۔ رومان کی آنکھوں میں ایک وحشانہ چمک ابھری۔ اس نے اشل کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور اس کے کان کے قریب ہو کر بڑی بولڈ سرگوشی کی۔ تو اب اس رومان ہنزادہ کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج کی رات ہماری ہے اور ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ تمہارا ماضی بھی نہیں۔ اس نے اشل کو دوبارہ اپنے قریب کیا۔ ان کے لبوں کے درمیان کا فاصلہ مٹنے لگا اور اشل نے بے ساختہ اپنی آنکھیں موند لی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دو بچھڑی ہوئی روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ یہ ایک ایسی خوبصورت شروعات تھی جہاں ماضی کی ہر تلخی محبت کی مٹھاس میں بدل چکی تھی۔ رومان نے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا تھا اور اشل اس کی باہوں میں اپنی زندگی کی تمام تھکن اتار چکی تھی۔